Assalamu alaikum. Today we are going to perform a connecting classroom activity, and the name of activity is Simple Act Big Impact. In this activity we are going to make a recycled paper from some used papers, right? You can see papers are in front of you. You can use gift papers, wrapping papers, जो आपके घर में पड़े हुए बेकार पेपर के टुकड़े होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. So what you are going to do now, Ms. Simi will explain you how you have to make it. You will take a paper and then fold it, and now I'm going to cut it into a small strips with the help of scissor. See, we are going to cut it like this. Make sure that you are going to cut these paper in a very small and thin, like this. You can use colored paper or white paper, any type of paper you can use it. We are going to show you the second step of this activity. Now you can take one container, and I'm going to put these shredded paper in this container. See this? And put water in this container, and we are going to soak this paper into a water for 3 or 4 hours. So we are now doing the third step of the activity, and as you know, due to pandemic we don't have students in the school, so Sir Salar and Sir Faraz is going to help us in this activity. What they are doing, first of all they are soaking draining the extra water, squeezing the paper. इन्होंने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से स्क्वीज किया. Miss Simi is going to give the directions how to do this activity, and ये इस पेपर में से सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल रहे हैं, right? And now what they are going to do, Miss Simi, can you explain it? Acha, after draining the all water, we are going to chop it with the hand. And see, it's all dry. क्या हम किसी मशीन से हेल्प ले सकते हैं मिस सीमी? जी बिल्कुल ले सकते हैं. पहले आप इसको अच्छे तरीके से हाथों से चॉप कर लें. देन आई एम गोइंग टू मिक्स ग्लू इन इट, और इसको चॉपर में या ब्लेंडर में डाल के भी यू आर गोइंग टू ग्राइंड इट. You can see it is a lengthy process and it takes lots of physical effort, but जो result आएगा वो हमारे effort को successful बना देगा. So this is the fourth step. We have mashed the paper. हमने उसको हाथों से भी बहुत अच्छे से मसल लिया था. Now Sir Faraz and Sir Salar is volunteering us for making the fine pulp of the paper. ये इसको इतना बारीक कूट रहे हैं कि वो उसका फाइबर जो है वो अलग हो जाए और ये बिल्कुल बारीक एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए. We are moving to our fourth step, and Miss Simi is going to demonstrate the fourth step. Now I'm going to put some glue. I'm going to put some glue in this paper pulp and mix it with my hand. And please make sure कि आप इसकी जो mixing करेंगे वो बहुत even करेंगे. We are going to take one screen, and you are going to put your paper pulp. Okay, so this is another step. अच्छा, घर में अगर आपके पास ये स्क्रीन ऑब्वियसली नहीं होगी तो फ्लैट सरफेस पे रख सकते हैं. फ्लैट सरफेस पे रख सकते हैं. आटा छानने की जो छन्नी होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. इजीली अवेलेबल जो भी चीज़ हो आपके पास. मिस सीमी तो इस काम में बहुत परफेक्ट हैं, तो वो अपने हाथ से कर रही हैं. अदरवाइज हमने ये रोलिंग पिन है, एक बेलन जिसको आप घर में आपके पास होता है, आप इससे भी कर सकते हैं. बट शी हैज़ वेरी फाइन स्किल्स, तो वो अपने हाथ से कर रही हैं इसको. जितना आप अपने हैंड्स को, यू कैन यूज़ योर पाम एज वेल.
इसको फ्लैट करेंगे, स्मूथ करेंगे, ताकि इसको ड्राई होने के लिए जब ड्राई हो तो ये थोड़ा सा पेपर की फॉर्म में आ सके, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। गाइज आपने इसको ओवरनाइट छोड़ना है, या अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो देन यू कैन यूज़ हेयर ड्रायर टू ड्राई दिस। इसको बहुत अच्छा सा, जब तक ये ड्राई नहीं होगा, बैक साइड से आपने इसको ड्रायर करना है तो ये आगे से आपका पेपर बाहर की तरफ आ जाएगा। वैसे आइडियली व्हाट आई रिकमेंड कि आप इसको ओवरनाइट छोड़ें ताकि अच्छे से ड्राई हो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, नाउ यू रिमेंबर कि कल हमने इस पेपर को स्क्रीन के ऊपर पेस्ट किया था और हमने इसको प्रेस करके इसको ड्राई करने के लिए छोड़ा था अपने पेपर के डो को, जो डो की फॉर्म में आ गया था। नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पेपर फ्रॉम दिस स्क्रीन एंड यू कैन टर्न इट बैक, और पीछे साइड से आप इसको थोड़ा सा आगे की साइड पे पुश करेंगे तो ये आपको खड़ करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा। इस फॉर्म में ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अनदर वन आई पेस्ट इट ऑन द पीस ऑफ टाइल। लेकिन ये पीस ऑफ टाइल आपके पास कोई भी स्क्वायर फॉर्म में हो, रेक्टेंगल फॉर्म में हो, या किसी भी शेप में हो, आप उसके ऊपर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इसको इस पे इसलिए पेस्ट किया था कि आई वांट टू डू सम पेंटिंग ऑन इट, इसके रफ और टेक्सचर्ड जो सरफेस है इसके ऊपर। एंड यू कैन यूज़ दिस टाइल, डेकोरेटिव टाइल, एनी ऑफ योर प्लेस इन ड्राइंग रूम एंड अ लाउंज और एनीवेयर। अच्छा, नाउ यू पीपल थिंक अबाउट इट कि ये जो आपका ये पेपर बना है, हाउ यू आर गोइंग टू डेकोरेट इट। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू आइडियाज़। आपके पास कोई ड्राई अरेंजमेंट्स हो, ड्राई फ्लावर के अरेंजमेंट्स हो, या जूट की रोप हो, या जो वुल, सिंपल वुल होता है, यू कैन डेकोरेट विद दैट वन ऑल्सो। आपके पास पुराने आपके मदर के पास ज्वेलरी के बीड्स होते हैं, यू कैन अप्लाई दैट वन एज वेल। और आपके पास कुछ ना भी हो तो यू कैन डेकोरेट दिस पेपर विद न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर की छोटी छोटी सी रोली पोली बना के और उससे आप फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप की चीज़ें इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। यू थिंक अबाउट इट कि आप इसको कैसे डेकोरेट करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि जब आपके पास ये इसका जो एक डो की फॉर्म में हमने बनाया था वो आ जाता है, तो यू कैन अप्लाई दैट डो ऑन एनी पेपर ग्लास। कोई आपके पास जैम बॉटल्स हों, कोई पुराने आपके पास बॉक्सेस हों, उसके ऊपर अप्लाई करके आप उसके ऊपर रफ सा टेक्सचर दें और पेंट करके अपनी कोई बास्केट या होल्डर और डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। Okay, so this is the recycled paper and we are looking forward for creative ideas from your side. आप ऐसे पेपर बनाइए और उस पेपर को किस तरह से आप यूटिलाइज करेंगे, उसको किस तरह से आप डेकोरेट करेंगे, अपने सैम्पल्स आप हमें पिक्चर्स की फॉर्म में सेंड कीजिएगा। Inshallah we will share that with the whole school. Take care of yourself. Allah Hafiz.